جو میرے ساتھی اسٹرولجر ہیں کہ حملی افراد کا جو رولر ہوتا ہے وہ مریخ ہوتا ہے، تو وہ جلد بازی کراتا ہے، تیز رفتاری کراتا ہے. تو اس ہفتے یہی بات ہو رہی ہے. ان کا خطرہ ہے کہیں زخمی نہ ہو جائیں، کوئی حادثہ نہ ہو جائے اس تیز رفتاری کی وجہ سے. ان کو آرام کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر وہ کوئی تھوڑا بہت صحت کے بارے میں محسوس کرتے ہیں تھوڑا بہت بھی، تو فوراً اپنا طبی معائنہ کرائیں تاکہ بعد میں یہ بات بڑھ نہ جائے. اس کے بعد رومانوی جو ہیں کوئی معاملہ ٹھیک نہیں ہے. کیا مطلب رومانس میں وہ چاہیے کہ رومانس میں انجنکشن لگانے کے لیے، رومانس کو تیز کرنے کے لیے، رومانس میں جان ڈالنے کے لیے زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے سے ملاقات کریں. اور یہ جو غیر شادی شدہ حضرات اگر رومانی معاملات میں ملوث ہیں تو ان کا ساتھی ان کو توجہ نہیں دے رہا صحیح، تو ان کے ساتھی کو چاہیے کہ اگر وہ اس رومانس کو چلانا چاہتے ہیں تو توجہ دیں. تو یہ آپ بیسیکلی ایک تو حملی افراد کے لیے خبر ہے، اور دوسری جن کا حملی افراد سے تعلق ہے، چاہے ان کا کوئی بھی سٹار ہے، ان کے لیے بھی یہ خبر ہے. ساتھی ہیں احتیاط سے، وہ پھر ساتھ اٹیچ ہیں نا جی، اٹیچ تو کر دیا آپ نے. تو وہ پھر جو بھی ان کے ساتھ اٹیچ ہیں، میرے اس پڑھنے سے جن کو احساس ہو رہا ہے کہ ہمارا اسے تعلق ہے رومانوی، تو وہ پھر اپنا سوچ لیں، توجہ دیں، کیونکہ معاملہ کچھ بیچ میں گڑبڑ آ گئی ہے. مالی حالات کیسے ہیں؟ چلے مالی حالات ٹھیک ہے ماشاءاللہ، بہتر ہے، وہ نہیں خراب ادھر. لیکن جو سفر کر رہے ہیں اس میں بہت احتیاط کریں. اور صحت آپ نے کہا کہ ذرا چیک اپ کروا لیں، خرابی ہو سکتی ہے. ویل آپ نے کیا فرمایا؟ میں نے کہا آپ کہہ رہے ہیں کہ صحت تو چیک اپ کروائیں، خرابی ہو سکتی ہے اگر وہ محسوس کر رہے ہیں ایون مائنر ٹربل، پیپل نیگلیکٹ کہ ٹھیک ہے جی ایسا ہوتا رہتا ہے، چھوٹا سا ٹربل ہے. لیکن میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ ایسا فیل کر رہے ہیں حملی افراد اس ہفتے، دے مسٹ گو ٹو ڈاکٹر اینڈ گیٹ میڈیکلی چیکڈ. یہ بہت ضروری ہے، ورنہ یہ جو مائنر ٹربل ہے یہ کہیں بڑھ نہ جائے. اب میں سوری حضرات کی طرف آ جائیں جی. ٹورس سوری حضرات، یہ سوشل لائف بہت اچھی ہے ماشاءاللہ، اور یہ اتنا ہفتہ ایسا کوئی ان کو موڈ بنا ہوا ہے، اپنے مستقبل کے بارے میں یہ بڑا کوئی منصوبہ تیار کر رہے ہیں. اور اس طرح منصوبہ تیار کرنے کے جو موجودہ مشکل صورتحال ہے اس پر بھی قابو پا لیں گے، اور اپنی صحت کا احساس کریں اور زندگی میں توازن پیدا کریں. آپ کوئی صحت کا اتنا خیال نہیں رکھ رہے، ضرور زیادہ کام کر رہے ہیں، تو چیک یور سیلف. رومانی معاملات میں سکون اور مفاہمت نظر آتی ہے. اور لیکن جو غیر شادی شدہ حضرات ہیں، بالکل جوان ہیں، ان کو کسی دلچسپ پارٹنر سے ملاقات ہو رہی ہے. اور اگر سرمایہ کاری بڑی کی ہوئی ہے سوری حضرات نے، دس از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ دس ویک، یہ ان کے لیے ضروری ہے. اگر بڑی سرمایہ داری کی ہوئی ہے تو آپ گھبرائیں نہیں، وقت کے ساتھ ساتھ چلیں، بعد میں سب ٹھیک ہو جائے گا. اب میں جو نہیں، اس میں ایک بات میں آپ سوال ہے میرا. آپ نے کہا کہ لوگوں سے ملاقات ہو سکتی ہے، کچھ نئی چیزیں شروع ہو سکتی ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ اب یہ پلینٹس کے کمبینیشن بھی تو ہوتے ہیں نا جو اچھے کامیاب ہوتے ہیں. ٹورس کا کمبینیشن اچھا کون سا ہے کامیابی کے لیے؟ اگر ریلیشن شپ اگر کرنا ہے تو کون سا سٹار زیادہ میچ کرتا ہے عمومی طور پر؟ ٹورس کے لیے زیادہ جو میچ کرنے والے پلینٹ ہیں وہ ایک تو ورگو ہے اور ایک کیپریکارن. ورگو اور کیپریکارن زیادہ تر یہی ہے. تو آپ ذرا ٹیمپرامنٹل جیسے کہتے ہیں نا، مزاج مل جانا اور کمپیٹیبلٹی وہ ہے. تو یہ آپ سوری حضرات، یہ آپ کے لیے ایک ایڈیشنل انفارمیشن. بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوگی تو یہ جو بہت سارے ملیں گے ایکویرین ٹائپ، ان سے ذرا دور رہیے. اور بیسیکلی پروفیسر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو اپنا ورگو اور کیپریکارن دے آر آئیڈیل ٹیمپرامنٹل کمپیٹیبلٹی. اور کیا چاہیے؟ اور کیا چاہیے؟ مزاج مل جائیں بس. اور تو پھر یہ چاہیے کہ رابطہ ہو جائے، گفتگو ہو جائے، ایکسیپٹیبلٹی ہو جائے. جی پروفیسر صاحب، جیمنائی جوزے کی طرف آتے ہیں، بڑی خاموشی اور سکون مل رہا ہے آپ کو. ایسے واقعات آپ پچھلے دنوں سے کافی دباؤ میں ہیں، تو اس ہفتے کوشش کریں کہ ایسے واقعات سے دور رہیں جو آپ کے ذہن پر دباؤ ڈال دیتے ہیں. تو جیسے پہلے نظر آ رہے ہیں آپ کو سکون مل سکتا ہے، اور اس سکون کو آپ حاصل کریں. اس کے لیے کوئی نہ کوئی سیر و تفریح کا پروگرام بنا لیں، کسی پرسکون جگہ چلے جائیں اور اپنے اعصابی توانائی حاصل کریں یا سکون حاصل کریں. اور ہفتہ کے جو آخری دن ہے وہ خاص طور پر جوزی حضرات کے لیے بہت اچھے ہیں. کیا ہوگا آخری دنوں میں؟ یہی سیر و تفریح، خوشی اور سکون، ملاقاتیں ہیں. دے ول فیل پیس آف مائنڈ، سینس آف ویل بینگ. تو یہ مزید کیا کچھ حاصل کرنا ہے، اتنا پرسکون ہو جائیں گے کہ آپ اس پرسکون حالت میں یہ سوچئے کہ میں نے آج تک کیا حاصل کیا ہے، میں کیا حاصل کر سکتا ہوں. آپ اس طرف موڈ بنے گا، آپ پازیٹیولی سوچیں گے اور ایک لائحہ عمل تیار کیجئے، اور اس لائحہ عمل کے مطابق مزید آگے کوشش کو جاری رکھیں. انشاءاللہ آپ کے ذہنی جو
मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। हाँ जी, हल हो जाएंगे। और आपके इस हफ्ता जो रोमानवी तौर पर कुछ शकूक शुबहात आपके बने हुए हैं वो खत्म हो रहे हैं। वाह वाह, ये तो बड़ी अच्छी खबर है, आप सुकून आ अपने जाएगा, पार्टनर के साथ वक्त गुजारेंगे। महबूब की तरफ से सुकून। यस, जबरदस्त। कैंसर, द प्लैनेट व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट इज कैंसर। हम कैंसर की तरफ आते हैं हजूर। और कैंसर के ये है, पहली खुशखबरी सुनिए, बहुत ज्यादा तरक्की आने वाली है, आ चुकी है या आ जाएगी इस हफ्ते। लेकिन इस तरक्की के साथ आप कुछ अजीब सा आपका जो रद्द अमल है, आपके तो ये दिमाग में बात घुस जाएगी कि मैं पता नहीं क्या चीज हूँ, और इसमें आकर आपका मूड ही बदल जाएगा। आप अपने दोस्तों को भूल जाएंगे और अपने गरूर में आ जाएंगे। हजूर कामयाबी आ रही है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, ऐसा मूड ना बनाएं। और इस कामयाबी के लिए ज़ाहिर है कीमत अदा करनी पड़ती है। जो भी कामयाबी उसके लिए मेहनत चाहिए, गरूर नहीं चाहिए। आप तो बड़े मूड में आ जाएंगे, ऐसा ना करें, निपटें। अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया है, इतनी कामयाबी आ गई है, हालात बेहतर हो रहे हैं। आप पूरी मेहनत से, जितनी मेहनत चाहिए इस कामयाबी के लिए, अपने आप को साबित करें कि मैं इस कामयाबी के काबिल हूँ। तो आप उसके निपटने की कोशिश करें और अपने दोस्तों भाइयों को ना भूलें। ये अकड़ आपकी ठीक नहीं है। मतलब आप बड़े घमंडी और मगरूरी होने वाले। कई लोग ऐसा करती हैं, अगर उनको जरा से भी कोई कामयाबी आ जाए। करते हैं भाई, आप सिर्फ ये आपने क्यों कहा सब करती हैं? आप खवातीन के बारे में कुछ नहीं करते हैं या करती हैं? नहीं, आपने पहले सिर्फ ये कहा करती हैं। नहीं, अगर करती हैं तो मुमकिन है सरतानी कई ख्वातीन जो है वो सोच रही होंगी कि ये हमें आगाह कर रहा है, लेकिन मैं उसमें मर्दों को भी शामिल करना चाहता हूँ। इसलिए उसके बाद जो अजीब बात है, ये आपने जो बात छेड़ी है उस सिलसिले में मैं ये प्लानर भी मेरे ज़हन में आ गए हैं। अपना समी भाई बरखुरदार, इस हफ्ते इनके बहुत ज्यादा चाहने वाले हैं, कोई एक नहीं, पता नहीं कितने लवर हैं जो इनके साथ वो तवज्जो दे रहे हैं। और वो जो लवर है, हर कोई कोशिश कर रहा है उसको जीतने के लिए। आपस में उनकी कशीदगी है, एक दूसरे के साथ वो हसद कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ वो लड़ रहे हैं। और ये कैंसरी जो ख्वातीन है, अभी आपने जिक्र किया था, वो इस जद में आई हुई है। अच्छा, उस जद में आने की वजह से वो आपस में लड़ रहे हैं और एक अजीब माहौल बना हुआ है, बदमजगी बनी हुई है, रंजिश बनी हुई है, और यूं उसके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है। अच्छा, इनका जो स्टार अच्छा हो सकता है कैंसर, अगर ये किसी के साथ दोस्ती लगाएं तो वो कौन सा है? हाँ, इनके लिए कैंसर के लिए जो बहुत अच्छा वो स्कॉर्पियो, और उसके बाद पाइसेस। अच्छा, इमोशनल कंपैटिबिलिटी, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, टेम्परामेंटल कंपैटिबिलिटी, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। जब ये आप ध्यान से सुन लें जी, कैंसर और बाकी ये जो आप सब जो आपके बहुत इतरा रही हैं, जरा तवज्जो से अल्लाह का शुक्र अदा करें। रोमांस बहुत ज्यादा है, मुठ रखें। लोग आपस में हसद कर रहे हैं, रंजिशें हैं, और आप उसकी जात में आए हुए हैं या आई हुई हैं, तो अपने आप को संभालिए। आ जाए जी, लियो असदी हज़रात। हाँ जी, लियो हज़रात के लिए मैं समझता हूँ कोई सफ़र आया हुए हैं। अच्छा, ये पूरा हफ्ता को सफ़र के प्लानट हैं, तो अगर आप सफ़र पर जाएं अस्सी हज़रात, तो आपके घर वाले महसूस करेंगे आपकी गैर मौजूदगी को। तो आप सफ़र पर जाएं, ज़रूर जाएं, लेकिन घर वालों का भी ख्याल रखें और उनके साथ रब्ता आपका रहना चाहिए ताकि वो महसूस न करें। उसके अलावा कैरियर के हिसाब से भी आपकी ज़िंदगी में कोई बेहतरी आ रही है। इसके साथ साथ फैमिली में आपके तल्कात और बढ़ जाएंगे। तो ये सब कुछ जो है अभी इसी हफ्ते में होने वाला है। और किसी बुजुर्ग रिश्तेदार के साथ किसी मसले को आप हल करने की, कोई आपके ख़ानदान में बुजुर्ग रिश्तेदार हैं आपके, आप उनके साथ बैठिए, मामले को हल करने की कोशिश करें और वो मुश्किल मसला हल हो जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि जो 80 हज़रात इलेक्ट्रॉनिक का काम करते हैं, जो 80 हज़रात इलेक्ट्रॉनिक में दिलचस्पी लेते हैं, तो इस हफ्ते ख़ास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक की अशिया खरीदो फरोख्त के लिए उनको बड़ा फ़ायदा होने वाला है। अच्छा, तो 80 हज़रात को चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ को खरीद लें और उससे उनको बहुत ज़्यादा नफ़ा होगा। ठीक, तो यूं आपके सितारे नज़र आ रहे हैं। उसके बाद मैं समरी हज़रात से बताता हूँ। विर्गो, हाँ जी, वर्गो, वर्गो, हाँ जी। तो इस हफ्ते जो भी हो रहा है, मुझे ऐसे नज़र आता है, जो मैंने सूरत हाल पढ़ी है या बनाई है, ऐसे नज़र आता है कि कोई दबाव है, पेचीदगी है, सोचेंगे, मनसूबाबंदी करेंगे। लेकिन आप फिक्र न करें, ये इस हफ्ते आप गुजरने दें। अगले हफ्ते आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी आने वाली है, बहुत ज़्यादा। आप इसे महसूस करेंगे कि आपके कई मसाइल हल हो जाएंगे। आप भी बहुत बड़ा मनसूबा तैयार करने लगे हैं ज़िंदगी में, अपने हालात को तब्दील करना चाहते हैं, ज़रूर बनाएं, लेकिन अपने आप को नाप तोड़ें कि क्या मैं ये मनसूबा बनाकर चलूँगा, क्या भी मनसूबा मेरे हालात के मुताबिक है। तो यूं अपने आप को नाप तोड़ लें, बड़ा मनसूबा बनाएं, ज़िंदगी में बड़ी तब्दीली ले आए।
जो आप सोचेंगे कि अब मैं ज़िंदगी को यूं कर दूं, यूं पलट दूं, यूं करवट ले लूं, तो उसके लिए ज़रा नाप तोल करके, सोच विचार करके, अच्छी तरह मनसूबाबंदी करके आप अमल करें और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाबी देगा। और नौजवान जो गैर शादीशुदा असम्बली हज़रात हैं, उनके कुछ इख्तलाफात हैं रोमानी मामलात में, और जो शादीशुदा हैं वो अपनी शरीक के साथ से मिलकर कोई हालात में बेहतरी लाएंगे। तो जो बड़ी तब्दीली जो आप चाहते हैं, सोचते हैं कि मैं करवट लूँ, यूँ कर दूँ, वो कर दूँ, उसके लिए वक्त आ गया है। वक्त आ गया है, लेकिन वक्त के साथ साथ नाप तोल का भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अल्लाह का नाम लेकर आगे बढ़े। ठीक हो गया। हाँ जी, अब आ जाए लिब्रा, मीज़ान। हाँ जी। मुझे ऐसा नज़र आता है कि अगले जो सारा हफ्ता है इनकी तवानाई में कमी रहेगी। अच्छा। और मन, हालांकि ये लोग ऐसे होते नहीं हैं बड़े तावन करने वाले और हर वक्त पॉजिटिव, लेकिन कोई मनफी ख्यालात ज़्यादा ही रहेंगे। अच्छा। और इन पर मनफी ख्यालात का कोई हमला रहेगा सारे हफ्ते। ओह। और ये इसकी ज़रूरी है कि आप इसकी ज़द बनाएं, आपका दूसरों का दबाव, आप पर दूसरों का दबाव कबूल न करें और आप इन मनफी ख्यालात की ज़द बनाएं और अपने तवानाई को बहाल करने के लिए वर्जिश करें, डाइटिंग का ख्याल करें, सरगर्मी लाएं अपने हालात में और अपने आप को मसरूफ़ रखें ताकि मनफी ख्यालात से आप बच सकें। और अपनी खुराक का बहुत ज़्यादा ख्याल करें ताकि आपकी तवानाई बहाल हो जाए। अपने सुकून के लिए कुछ वक्त निकाल लें और आपका जो मुस्तकिल कुछ साथी है, परमानेंट किस्म का जो रोमांस आपका चल रहा है, उस रोमांस को तवज्जो दें। खतरात के शिकार है वो। और उसमें से आपको कोई बंदा कोई और या बंदी पहना मुस्तकिल रोमांस से उसमें आपको सुकून मिलेगा। दोस्त अब आपके साथ ज़रूर मिलें। और एक बात ऐसी मुझे नज़र आ रही है जो अजीब सी है, आप मुझे पता है आप मुझे सवाल करेंगे, इतना रोमांस ज़्यादा वक्त से चलता आ रहा है कि ऐसा लगता है आप सैर हो गए हैं, भर गया दिल। इतना रोमांस। ओ हो। जब आदमी सैर हो जाते हैं, हर एक्सेस टू एवरीथिंग इज बैड, वो कहते हैं ना लोग, तो यूं कुछ रोमांस रोमानी मामलात में ये महसूस करते हैं। लो जी, आपका तो फिर काम होने वाला है। आ जाए अगले प्लेनेट पे, आ जाए स्कॉर्पियो पे। स्कॉर्पियो, ये इन्होंने एक बहुत ही अहम बात जो मैं पहले बता दूं, आगाह कर दूं, एहसास दिला दूं कि आपने बहुत कुछ किया हुआ है, काम किया हुआ है, जो कुछ भी किया हुआ है, इस हफ्ते अगर जरा से भी आपसे गलती हो गई तो सब जाया। अगर आपने जरा सा भी आपका पाँव फिसला तो सारा पानी फिर जाएगा पानी जो आपने आज तक किया है। तो जरा बचाएं अपने आप को, जरा सी गलती आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। आपके वैसे दूसरों के साथ रबते रहेंगे, मुलाकात रहेगी, बातचीत रहेगी, बात से भी बातचीत हो सकती है और कई मसाइल का हल निकल आएगा माशाल्लाह। और आप अपने रोमानी साथी का ख्याल करें, क्योंकि बीमार है वो आपको समझता है, आप उसको क्यों नहीं समझते। अच्छा, ये रोमांस में समझने समझाने के बड़े मसले ये हजरात होते हैं ना, ये बड़े इनमें शिद्दत होती है और शिद्दत की वजह से ये मसाइल पैदा होते हैं, टकरे मारते हैं। इनका जो भी साथी होगा और शिद्दत का शिकार होगा और उसे कोई ना कोई मसला बना रहेगा। अगर एक शिद्दत का शिकार हो और एक बेशिद्दत का शिकार हो तो फिर एक शिद्दत का शिकार हो और एक बेशिद्दत का शिकार हो, क्या होगा? तो फिर क्या होना है, जो कि होना चाहिए। जिसको अभी आप बता रहे हैं कि इससे बच जाए, तो बहरहाल अपने रोमांस में एहतियात करें और आपका साथी जो है वो आपको वो समझता है, आप उसे क्यों नहीं समझ रहे। ये फिर आप ऐसा नजर आता है कि आप उसके जज्बात को मजरू कर रहे हैं। ये आप लड़की का जिक्र कर रहे हैं कि आप क्यों नहीं समझ रही हैं, आप फिर आपने कह दिया लड़की का, तो मैं इसके साथ इजाफा कर देना मर्द का भी, आप किस लिए बैठे हैं। नहीं, वो इजाफा बड़ा जरूरी है, मगर ना ये फिर ऐसा लग रहा है कि सारा मलबा बेचारी खवातीन पे डाल रहे हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। अक्सर भी हजरात के लिए एक और आम बात, कुछ लोग ऐसे हैं जो जिंदगी में कोई ना कोई कोर्स कर लेते हैं अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए, कोई कोर्स अख्तियार कर लिया तो उसके बाद पूरे मलेशिया तो आपको बड़ा मौका मिल रहा है। जो अकबरी हजरात हैं, आप अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में मज़ीद बेहतरी लाना चाहते हैं, उस कोर्स करने से आपके हालात बेहतर होंगे, लेकिन पूरे मोहल्ले को अपनी लेबॉर्टरी मत बनाइए कोर्स सीखने के और उस कोर्स को करें और उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। जबरदस्त इंफॉर्मेशन, आप अपना हफ्ता प्लान कर सकते हैं। लेकिन मैं ये आपको बात बता दूं, ये जो सारा इल्म है ये एक सेकुलर इल्म है, ये कोई डिवाइन इल्म नहीं है, ये गैब का इल्म सिर्फ मेरे अल्लाह को मालूम है। हम मुसलमानों का इस पर यकीन है, यकीन कामिल है। तो इसलिए ये एक स्पेकुलेशन हो रही है, प्लैनेट्स की जो मूवमेंट है उसको देख के बड़ा कदीम इल्म है। चाहते हैं या किसी हमायत की ज़रूरत है या आपको इस किस्म के हालात पैदा हो चुके हैं कि आप अपने दोस्त अहबाब से रब्ता करें और साथियों से रब्ता करें, आपको हर किस्म की हमायत मिल सकती है। आप ये कह रहे हैं कि जो आपके भूले हुए दोस्त हैं, जिनको आपने छोड़ दिया, उनसे रब्ता करें। जो भी दोस्त हैं जिनके साथ आप खुद बहुत अच्छे दोस्त हैं, हर एक का
ख्याल रखते हैं, तो इस मौजूदा सूरत हाल में अगर आपको हमायत की ज़रूरत है पेशा वराना तौर पर, प्रोफेशनली, तो आपको अपने साथियों से आप रजू फरमाएं, बात करें, आपको हर किसी को हमायत मिलेगी और आप बड़े से खुश होंगे और मामलात आपके से पहले से ज़्यादा बेहतर होंगे। और आप ख़ास तौर पर एक बात का ज़हन में रखें, आप ज़िंदगी में पहले भी कई लोगों को आजमा चुके हैं, तो आप उन पुरखलूस साथियों को अपनाएं, उनकी हमायत हासिल करें जिन पर आपका एतमाद हासिल हो चुका है और जो आप महसूस करते हैं कि वो एतमाद के काबिल हैं, उनकी मदद ज़रूर कबूल करें और उनसे मिलकर आप अपना कारोबारी तौर पर जो चाहते हैं कदम उठाएं। घरेलू ज़िंदगी में आप दिल खोल कर बात करें और घरेलू ज़िंदगी में इख्लाफ फतेह करने के लिए आप ये ज़रूरी है कि आप बात करें खोल कर दिल दिमाग को और इस तरह इख्तलाफात ख़त्म करने की कोशिश करें। आपके करीबी रिश्तेदार भी आपकी मदद करेंगे। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ जी, और रोमानी मामलात को हल करने के लिए 200 बार से रजू करें। रोमानवी साथी से आपकी मुलाकात और बातचीत बहुत ज़रूरी है। कुछ कोल्ड एटमॉस्फियर हो चुकी है, तो आप ऐसा करें, यानी जिससे प्यार है वो जरा थोड़ा कोल्ड हो चुका है। हाँ, कोल्ड है, तो वो जरा उसमें जान डालने के लिए मौसम तो बड़ा गर्म है ये पता नहीं। लेकिन नजर ये आता है, अगर आप तंग आ चुके हैं और आप समझते हैं कि रोमांस जो है जी मैं इतना सब्र इतनी टेंशन मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, नहीं तो रोमांस फिर वो क्या हुआ जिसमें सब्र और टेंशन नहीं है प्रोफेसर? हाँ होती है, लेकिन अगर आप मीर को पढ़े गालिब को पढ़े वो तो मामला ही सारा सब्र और टेंशन का है जी। वो जनूनी शायर थे रोमानवी मामलात में। मैं अब आप ब्रायलर शायर का जिक्र कर रहे हैं, ब्रायलर मोहब्बत तो मैं ये बता रहा हूँ ठीक है कि अगर वो महसूस करते हैं कि हम टेंशन मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, तो मैंने पिछले हफ्ते भी ये कहा था कि आप इस रोमांस को खत्म कर दें। और सेहत कैसी है इनकी? आप हमेशा ये बताते हैं कि इनकी सेहत ठीक है। और ये अगर जारी रखें, सेहत इनकी हर वक्त जो चाहती है, ये कोई तवानाई इनकी बहाल नहीं ये है। तो मरीज है मोहब्बत है, टोटल नॉर्मल बीमार, नॉर्मल तवानाई नहीं है। इनको हर वक्त अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए ठीक। और ऐसे विटामिन प्रोटीन वगैरह लें जिससे इनकी तवानाई बढ़ रहे, क्योंकि एक सितारा अच्छा कुछ लोगों को विटामिन इतना असर नहीं करते, लेकिन किसी की प्यार से की हुई बात बहुत असर करती है। वेल, तो ये सेजिटेरियस पर इनके प्लान्स क्या बताते हैं? विटामिन या प्यार भरी गुफ्तगू? किसके जी? सेजिटेरियस के। हाँ सही, ये कि विटामिन प्रोटीन कोई ऐसी तवानाई ठीक है, आप जिससे बहाल हो। ले जी, आप गोली खा लें, कोई नहीं, ये प्यार दी गल सुनने की कोई लोड़ नहीं। अच्छा जी, अब आ जाए कैप्रिकॉर्न जद्दी। वेल, आई एम गोइंग टू वेरी इंपॉर्टेंट साइन। अगर दुनिया में बड़ी बड़ी जो कामयाबी हुई है हमेशा कैप्रिकॉर्न को, हमारे जो अबू कायद थे, कायद आजम, उनका भी इनका ही वजह कैप्रिकॉर्न। लेकिन कैप्रिकॉर्न जो है ये दो किस्म के रद्द अमल, जो भी कैप्रिकॉर्न होगा दो किस्म के रद्द अमल पैदा करता है। या तो जुनूनी हद तक लोग उनको पसंद करने वाले होते हैं, या जुनूनी हद तक लोग उनसे नफरत करते हैं। हमेशा इनके दो ग्रुप बन जाते हैं। तो कायद आज़म ने भी अपनी मुखालफत को बड़ी जानत से डील किया, बाकी भी जो कैप्रिकॉर्न है वो अपनी तरफ से कोशिश करते रहते हैं। तो इस हफ्ते जो जदीद हज़रात के हालात हैं वो सुनिए। आप ऐसे लोगों के साथ रहें जो ईमानदार और परखुलूस हों, क्योंकि बाकी लोग आपको धोखा दे रहे हैं। पहले आप ये देखें कि मेरे जो करीबी लोग हैं उनमें ईमानदार और पुरखुलूस कौन है, उनके साथ अपनी ज़िंदगी अपनाइए और इस तरह आपकी ज़िंदगी में कोई सुकून और बेहतरी की उम्मीद हो सकती है। और असाबी कुछ तनाव की आपके जो है ना वो बड़ा हुआ है, असाबी तनाव, व्हाट वी कॉल नर्वस टेंशन। आप अपनी जिम्मेदारियां उनको निभाने की कोशिश करें, गुस्सा पर कंट्रोल करें। इस तरह ये हफ्ता आसानी से गुजर जाएगा। रोमानवी तौर पर ऐसे सूरत से बचें। रोमानवी तौर पर हालात ठीक है, लेकिन इस रोमान से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपका। ये सोच लें, आप जहाँ छलांग लगाने लगे हैं वहां से निकलना मुश्किल। सही इमोशनल टिच वैली ऑफ नो रिटर्न। ओह माय गॉश, ओह माय गॉड, रिवर ऑफ नो रिटर्न। ओह, तो ये सोच लें कि क्या मैं इस रोमांस में आगे निकलूं, तो फिर इससे बाहर नहीं आ सकते आप। तो अगर आप में असाबी तवानाई है, आप माशाल्लाह असाबी तवानाई से मुकाबले नहीं। प्रोफेसर साहब इतना वार्न क्यों कर रहे हैं? तवानाई भी है, माहौल भी है, जज्बात भी है, ताकत भी है, तो भाई घुस जाए। क्या इसमें ऐसी परेशानी की बात है? तो ये सूरत हाल बनी पड़ी है। आ जाए जरा, आपने अब जरा आ जाए जरा। कोई माली मंसूबा आप ज्यादा ना बनाएं जदीद, क्योंकि आपके इत्मीनान में बहुत कमी है। आप वो अभी फैसला न करें। मैं दलवी हज़रात की तरफ आ जाए जी। एक्वेरियस दलवी हज़रात जी। मामला तेजी से आएंगे इस हफ्ते। एक है, दूसरा, तीसरा, तेजी से आते जाएंगे हालात, वाक़यात, और हर चीज जल्दी से अपना आप शो करेगी, दिखाएगी अपना आप। तो आपको मामलात को सुलझाने में खातर खा तवानाई की जरूरत है। इतनी जल्दी जल्दी ये हालात आएंगे।
اور آپ کا جو اچھا رویہ، آپ اچھا رویہ اپنائیں گے، پازیٹیو رویہ، تو اس سے ماشاءاللہ آپ حالات پر پورا اتریں گے. تو دلوی حضرات ٹھیک ہے، حیثیت ٹھیک ہے ان کی، پیسے ویسے آ رہے ہیں؟ دلویوں کو خیال رکھنا کیا پڑے گا. پیسے آ رہے ہیں؟ آرام کی بہت ضرورت ہے. پیسے آ جائیں گے، آج بھی آ سکتے ہیں، کل بھی آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، پیسے آ جائیں، پیسے اور رومانوی حالات میں جذبات میں آپ بہ جائیں گے اس دفعہ. بہ جائیں گے. ٹھیک ہے جی، تو آپ ایسا کریں رومانوی حالات میں. بہنے میں آ جائیں، ادھر پیسز پہ آ جائیں. آپ کے سارے سفر کے لیے آپ کو اکسا رہے ہیں ہوتی حضرات، اور آپ کے آرام و سکون کی آپ کو بہت ضرورت ہے. سفر اچھا رہے گا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اپنے آرام کا سوچئے. اور اس کے بعد کاروباری طور پر سفر کرنے میں آپ کو بڑی سمجھ سوجھ بوجھ کا ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ کاروباری حالات میں گڑبڑ کا خطرہ ہے اگر آپ نے سمجھ بوجھ سے کام نہ لیا. محبت اور اپنا تحفظ، اپنے سفر کے دوران اپنے تحفظ کا خیال رکھیں. روحانی طور پر آپ ایک دوسرے کو مزید سمجھنے کے لیے آئے دن ملیں، نہیں تھے آپ. بات چیت کریں. آپ مروائیں گے، پکڑوائیں گے پروفیسر صاحب، زیادہ ملنے کی بات کر رہے ہیں آپ. مل بیٹھیں، اور اس طرح یہ ہوگا کہ آپ کے جو ہے وہ جذباتی طور پر آپ ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گے، اور آپ اپنے رومانس کو کامیاب بنائیں گے. کامیاب بنا سکتے ہیں. اور پیسے، اس ہفتے دولت، ہاں پیسے آ رہے ہیں.